विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद गज के आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। श्री राग महला पंजवा। दुकृत सुकृत मंधे संसार सगलाना। दोहु ते रहत भगत है कोई मिलना जाना। दुकृत सुकृत मंधे संसार सगलाना। दोहु ते रहत भगत है कोई बिरला जाना। ठाकुर सर्बे समाना। क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना। ठाकुर सर्बे समाना। क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये पवित्र बचन पंजवें पातशाह शहीदां ने सिरताज छत्र चवर तख दे मालक हलत पलत के रखियक सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे उचारण कीते होए इन्हां पवित्र बचनां राहीं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की उपदेश बख्शिश करते हैं। ये पवित्र शब्द श्री ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग 51 उपर सुभाएमान। तीसरा शब्द है सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं। दुकिरत सुकिरत मंधे संसार सगलाना। दुकिरत कोई माड़े काम करदा है, सुकिरत कोई चंगे करदा है। माड़े काम करने वालियां नूं तां परमेश्वर मिलदा ही नहीं गा। इस कोई शक नहीं। जिहड़ा पाप करदा है चोरियां ठगियां लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन जी नाल तग कपाहों कती है बामण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। पातशाह इत्थे कहंदे है कि मनुख धर्मी नहीं हो सकदा जे माड़े काम नहीं छड्डदा। दुकिरत माड़ी किरत माड़ी कमाई माड़े ख्याल माड़ी सोच ये तो तुहानू कदे भी परमेश्वर दे नेड़े जान ही नहीं दिंदी। हुण आ गई गल सुकिरत ते। चंगी सोच चंगे कर्म चंगे ख्याल चंगी कमाई वो किहड़ी आ। क्योंकि कई बारी मनुख चंगे कर्म करके हंकार कर बहिंदा उहदे नाल भी उहदा कीता चंगा काम खराब हो जाता। को सतनाम श्री हौ मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। तां गुरु प्यारिओ हुण गल सुकिरत ते आ गई। दुकिरत तां सारी दुनिया दे विच ही चलदी है, सुकिरत भी चलदी है। हुण सुकिरत विचों किरतां विचों सुकिरत किहड़ी है?
ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਕਿਰਤ। ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਕਿਰਤ ਸੁਕਿਰਤ ਮੰਧੇ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲਾਣਾ, ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ ਹੀ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੱਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਬਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਪਾਗੋ। ਕੋਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਲੈ, ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਮਣ ਮੜੀਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਭਾਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸੀ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਮਣ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਭਾਹੇ। ਭਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਬਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਹੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਨਿਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਨੀਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੁੜਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਚੱਕਦਾ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਵੀ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ। 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 39 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸਨ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਾ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ। ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ।
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਆਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਡਲੇ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੀਂਹ ਭਰਾਤਾ, ਗੜੇ ਭਰਾਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਜੋ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਭਰਥਰੀ। ਭਗੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਹੰਭ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਗੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਪਲਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਉੱਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਆ ਦੇਣਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆ ਤੂੰ ਅੰਗ ਜੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝਦਾ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਮਖ ਕਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੇ, ਤੋਪੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪ ਕੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੌਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਸਮੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਕਿ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਿਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਜੀ ਜਾਂ ਮਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾਤਾ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ! ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਤੇ ਦੁਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ
दर्शाउणा नहीं किसी नूं, कहना नहीं कि आ मैं कीता है, कहो सतनाम श्री। बहुत करामाती शक्तियां उत्थे वरतियां, पर गुरु कहना नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, साडे विच कोई करामात नहीं, ये तो परमेश्वर वरता रहा है कौत तुहानूं समझाउण वास्ते। ओ सिख ने ओ जोगी नूं समझाया, तू पखंड छड्ड के प्रेमा भगती दे मार्ग ते चल। गुरु साहब कहते हैं कि अपने आप नूं खुदा कहना ते दूजियां तो कहाउणा, ये बहुत वड्डी जीवन दे वास्ते माड़ी गल है, हंकार दी गल है। गुरु नानक दे घर विच सतगुरु अर्जन देव दे विच कितनी पावर है, कितनी शक्ति वरत रही है, पर फिर भी तत्ती तवी ते बैठ के अपने आपे नूं शहीदी तक लै गए, पर चंदू नूं कोई करामात नहीं विखाई। कहो सतनाम सी, कोई कौतक नहीं किया उत्थे। चंदू नूं मुख चो ये भी नहीं कहा तेरा ऐदां हो जे, भाव ये काम परमेश्वर आपे करूगा, ये उन्हां दी मर्जी है। दुकिरत सुकिरत बंद है संसार सगलाना, सारा संसार चंगे ते माड़े कामां दे विच फसिया होया है। दोहों ते रहत भगत है कोई बिरला जाना, इन्हां दोहां तो जे कोई बचिया है ते परमेश्वर दा प्यारा बचिया है। जो परमेश्वर नाल जुड़िया है, माड़ा तो वह करदा ही नहीं ते चंगा करके भी अपने सिर नहीं लैंदा। नेकी कर दरिया में डाल, इस करके परमेश्वर दे प्यारे पुण्य पाप तो परे हुंदे हन। कबीर साहब जी कहते नरक सुरग हम दो राधे। लोग पुण्य करते न काहदे वास्ते? ਉਹਦਾ फल मिले, स्वर्ग मिले। पाप करन जिधर जाती है जाती ही है, पर कबीर साहब जी कहते ना मैं पुण्य करा ना पाप करा, मैं दोनों तो ही बाहर हाँ। कहो सतनाम श्री। चंगे काम करते हैं भगत जी, ऐसी गल नहीं, पर कभी अपने सिर ते नहीं लेंदे। नरक स्वर्ग हम दो राधे, हम काहू की कान न कढ़ते। असी ना तेरे स्वर्गां दे मुथाज हैं ब्राह्मणा, ना असी नरकां तो डरदे हैं। कान हुंदा मुथाजगी। हम काहू की कान न कढ़ते, अपने गुर प्रसादे मैनू मेरे गुरु ते भरोसा है। ना तेरा दिता होया स्वर्ग मैनू चाहिदा, क्योंकि भगत कबीर साहब जी दी कई बारी ब्राह्मणां नाल जुदाई हुई है, ते ब्राह्मणां ने ही ये भरम लोकां विच नरक स्वर्ग दा पाया। असल विच ये सुख ते दुख हन जिहड़े मनुख नूं अपने कीते कर्मां दा सिट्टा दिंदे आ, फल दिंदे आ। इस करके पातशाह जी कहंदे ये दुनिया चंगे ते माड़े कर्म करके जिहड़ा है दोने ही बंधन विच हन। चंगे कर्म जिहड़े मानो सोने दी बेड़ी बन जांदे है, ते बेड़ी तां कासे दी भी होवे, पैरां नूं बन्नदी होई बन्नदी आ, चाहे लोहे दी होवे चाहे सोने दी होवे। जदों कोई चंगे कर्म करके हंकार कर लवे ते ओह भी बंधन बन जांदा है। पर परमेश्वर दे प्यारे विरले भगत हन जिहड़े कहंदे हन ठाकुर सरबे समाणा। परमेश्वर हर थां ते वेखदे हन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी बाणी विच बड़ियां कमाल दीयां विचारां लिखियां दसम ग्रंथ विच। तो उत्थे जिस तरह लिखते हैं, मानस की जाट सब है एके पहचान वो, करता करीम सोई राज कर ही मोई, दूसरो न भेद कोई भूल पर मान वो। साडे असी करता पुरख कहने आ, मुसलमान करीम कहते हैं, रहीम कहते हैं। हिंदू लोग है जिहड़े उसनूं राम कृष्ण कहते हैं जां होर कुछ कहते हैं। असल दे विच सारियां थावां ते इक्को ही परमेश्वर समाया होया है। ये परमेश्वर दे प्यारे कहंदे न ठाकुर सर्बे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी मैं की दसा। मालका किसे नूं की मंदा कहीए की चंगा कहीए, सारियां विच तू ही तां वसदा है। कहो सतनाम श्री।
ये अवस्था की गल है गुरु प्यारो। शब्द के अर्थ है जिहड़े अवस्था मुताबक हुंदे ने। शब्द अवस्था मुताबक उचारण कीते है। इको शब्द के अर्थ हुण भाई कन्हैया जी कह रहे हैं कि दुश्मनां विच भी तू है ते मित्रां विच भी तू है। मैनू ना कोई मित्र लगदा ना कोई दुश्मन लगदा है। पर उन्हां विचों कुछ शिकायतीए शिकायत लाउंदे आ ते ओह कहंदे आ भाई कन्हैया दुश्मनां नूं पानी पिया रहे है। जद कन्हैया जी नूं पुछिया ते ओह कहंदे ना महाराज मैं तो किसी नूं पानी नहीं पियाया, मैं तो तुहानूं पानी पियाउणा। कोई सतनाम सोच है ना। ये संसार जिहड़ा है चंगे माड़े विच फसिया होया है। पर परमेश्वर दे प्यारे ये चंगे माड़े तो उच्चे उठ जाते हैं। किसी नूं की मंदा कहीए जदों सारियां विच तेरा नाम ही सुनाई दिंदा है। ब्राह्मण लोग थाल घुमा के आरती करते हैं। रविदास भगत जी कित्थे आरती वेखदे आ। गुरु नानक पातशाह आरती का की रूप दसदे आ सानू। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। जिन्ना आरती का समान है दीवा बत्ती तेल, इन्हां सारियां च तेरा नाम ही चल रहा। आरती हो रही आ। सूरज विच सूरज आरती कर रहे हैं, चंद्रमा आरती कर रहे हैं, आकाश थाल है, तारे विच मोती रखे आ। और ब्राह्मण थाल घुमा के किसी मूर्ति अगे आरती करता है। बाबा नानक उन्होंने कहते ओ भलिओ किहदी आरती करदे हो? कहते जगन्नाथ दी। कहते कित्थे आ जगन्नाथ? कहते आ देखो मूर्ति बनी हुई है। कहते बस एडा की जगन्नाथ है? कहते हाँ जी असीं तां एडा की मन्निया। कहते नहीं, जगन्नाथ का अर्थ की है जग दा मालक। ते जग किड्डा वड्डा है? ते जिड्डा मालक हुंदा उड्डा ही बंदा हुंदा। जिड्डा बंदा हुंदा उड्डे ही उहदे काम हुंदे आ। संसारी तौर पर गल करिए जे वड्डा बंदा बहुले पैसे वड्डी कोठी वड्डा महल पा लैंदा, छोटा बंदा छोटे पैसे आ थोड़ा जिहा घर पा लैंदा। कोई सतनाम सी। जद एडा वड्डा संसार है उहदा मालक किड्डा होना चाहिए? जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जिड्डा वो आप है उड्डी वड्डी उहदी आरती होनी चाहिए आ। आ मूर्ति नहीं हैगा जगन्नाथ, ये तो पत्थर की मूर्ति है, जगन्नाथ दी नहीं। कहते फिर तुसी दसो कित्थे आ? बाबा जी कहते गगन में थाल। जिहड़ा आकाश है ये थाल है। रब चंद दीपक बने। जिवें तुसी निक्की जी थाली च दो दीवे रखे न, उस दे वड्डे थाल विच एक सूरज ते एक चंद्रमा दो दीवे रखे आ। तारका मंडल जनक मोती जिवें तुसी फुल रखे है, उस दे थाल विच तारे रूप मोती रखे आ। धूप मलियान लो जिवें तुसी निक्की जी अगरबत्ती लाई है, उस दी आरती दे विच हिमालय पर्वत वल उड्डे होए चंदन दे दरख्तां चों खुशबू आ रही है। धूप मलियान लो पवन चावरो करे, तुहाडा निक्का जिहा चौर ये हवा उसनूं दरख्त हिला के चौर कर रही है। को सतनाम श्री सगल बनराए फुलंत ज्योति। और तुसी तां फुल तोड़ के लियादे न। ये सारी कुदरत ये सारी जिहड़ी भी सृष्टि है अपने फुल पैदा करके परमेश्वर तो वार रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 4 फुल साडे तो वारे आ। जद मातावां ने पुछया दमदमा साहब तलवंडी पहुंच के पातशाह बच्चे नहीं दिसदे। किहड़े बच्चे? महाराज 4 साहिबजादे। हो अच्छा, वो तो इन्हां तो वार दिते, इन्हां नूं बचाउण वास्ते वो वार दिते। इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत 4, 4 मुँह तो क्या हुआ जीवत कई हजार। हुण आपां नूं सोचना चाहिए गुरु साहब साडे बारे की सोचदे है ते असीं हुण की उहदा जवाब देना, की करना, उहदा बदला की देना। असीं गुरु साहब नूं जिन्हां ने आपदे 4 फुल परमेश्वर तो सृष्टि तो वार दिते, अपने 4 साहिबजादे।
इस करके सगल बनराए फुलंत जोड़ी ज्योति, ये सारी बन राज, ये कमल दे फुल, गेंदे दे फुल, गुलाब दे पौधे, ये सारे अपने फुल पैदा कर करके परमेश्वर तो वार रहे न। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, ये है उस परमेश्वर की आरती। रहाओ जगन्नाथपुरी दे पंडित कहन लगे, महाराज फिर ठीक है, चलो मन्निया, तुसी इस नूं आरती कहने हो। कहने मैं तो यही आरती वेखदा हुन्ना, दिन रात 24 घंटे उहदी आरती चल रही है। चल मन्निया तुसी थोड़ी आरती मान लैने आ, यही है। फिर जिहदी आरती हो रही है वो जगन्नाथ कित्थे है, परमेश्वर कित्थे है? कहते ओ रहाओ वो कोई एक मूर्ति विच नहीं है, पर ठाकुर सर्वे समाना। क्या कहो सुनो स्वामी, तू बड़ पुरख सुजाना, तू बड़ा सियाना है। सर्व कला समर्थ है, मैं छोटी मत वाला की कहा। रहाओ गगन में थाल रवचन दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तुह मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनाए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहत्ता शब्द वाजंत भेरी। तुसी ढलियां घंटियां संख बजाउने हो, ਉਹਦੇ अनहद बाजे हर वेले 24 घंटे ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। मोर मीन मिर्ग मखेरू जो बोलता है बिन हर जापत है नहीं, हो रहे सारे पंछी राम राम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भाषा कोई होर है, सानू समझ नहीं आती। कोई सतनाम सी, क्योंकि परमेश्वर का नाम अंग्रेजी च गॉड कहते हैं, असी वाहिगुरू कहने, कोई राम कहता है, पर नाम तो सारे परमेश्वर दे ही है। कोई अल्लाह कहता। पातशाह जी ने पूछया, महाराज फिर वो रब कित्थे है, जगन्नाथ कित्थे है? पातशाह जी कहते सहस तव नैन नन नैन है तो है को, ओदा कोई एक अख दो अखा नहीं है, आ हजारां अखां दे विच ओही है। सब मैं जोत जोत है सोए। सहस तव नैन नन नैन है तो है को, सहस मूर्त नना एक तो ही। आ हजारां शरीर उसे दे न, इन्हां दे विच ओ वरत रहा है। सहस पद बिमल, बिमल मैल रहत, दो पैर नहीं हजारां पैर आ उस दे, पवित्र चरण, बिमल पवित्र। सहस पद बिमल नैना एक पद, ओदा एक पैर, दो पैर नहीं, ओदे हजारां पैर आ। गंध बिना, वो नक तो बगैर है, पर इन्हां हजारां नक्कां राही खुशबू उही लैंदा, ओहदा आपदा कोई नक नहीं हैगा। कहो सतनाम। गंध बिना सहज तव गंध इव चलत मोही, तेरियां इन्हां चालां ने मैनू मोह लिया। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए। जे इस परमेश्वर नू जानना ते गुरु वाले बनो, गुरु कोल बैठो, गुरु नू पुछो, गुरु दसो। जो तिस भावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित, मनो आंदिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा। मेरे प्रीतम जी कहने भले हो, ओ परमेश्वर ता हर थां ते वसदा। पंजवें पातशाह कहने मैं क्या कहां, क्या कहो सुनो स्वामी, तू वड पुरख सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही। जे कोई काम करके वडियाई भालदा है, कोई हंकार करदा है, वो रब दे नेड़े नहीं हो सकता कदे भी। जेड़ा मान वडियाई भालदा है, वडियाई सुन के खुश हुंदा है, निंदा सुन के दुखी हुंदा है, वो हजे परमेश्वर तक नहीं जा सकता। कहो सतनाम सी। जेड़ा हंकार करदा चंगे कीते दा, वो भी नहीं जा सकता। सो सेवक नाही तत् समदर्शी संतो, कोई कोट मंदाही, कोई करोड़ां दे विचों इहो जिहा विरला है जेड़ा सारियां विच परमेश्वर नूं देखदा है। किन्नी फौज है,
पर उन्हां चों एक भाई कन्हैया ही कह रहा है कि सारियां च तू ही वसदा, को सतनाम सी। कोट मंदा करोड़ां च बिरला कोई, कोटन मैं कोऊ। समदर्शी सारियां विच परमेश्वर नूं जानण वाला कोई बिरला है। तत् समदर्शी तत् नूं जानण वाला। हरगोबिंद साहब महाराज जी सिखां नूं कहण लगे, सिखो शेर बिरती रखो, शेर बिरती। सिख कहने महाराज वो की हुंदा? कहने कुत्ता बिरती हुंदी है, एक शेर बिरती हुंदी आ। महाराज वो किवें? कहंदे जद कुत्ते दी कोई सोटी मारदा है ते कुत्ता सोटी नूं पैंदा, मारन वाले दे मगर नहीं जांदा, सोटी जां डले मगर भज। डला मारो चला के, कुत्ता बंदे नूं छड्ड के डले मगर भजदा। पर जब शेर नूं कोई मारदा बंदूक लैके जां डांग लैके जां डला मारदा है ते बंदूक उस जां सोटी जां डले वाल शेर नहीं भजदा, शेर मारन वाले नूं फड़दा। इस करके साडी जिहड़ी बिरती है वह परमेश्वर वाल ही होनी चाहिए है। दुख जां सुख देण वाला परमेश्वर है, उहदे हुक्म तो बगैर पत्ता भी नहीं हिलदा ते वो दुख सुख भी परमेश्वर आप दे कोलों नहीं दिंदा, साडे कीते हुए कर्मां दे फल दिंदा है। कहो सतनाम, सारिਆਂ विचों वसदा। तत् समदर्शी संतो कोई बिरला, कोई कोट मंदाही करोड़ां विचों कोई बिरला। कहण कहावणी है कीरत कर ला, कोई कहना भी आह काम कर लो, कोई कहना आह कर लो। किन्ने तरह की दुनिया में चंगे कर्म है, किन्नी तरह के माड़े कर्म है। कोई चंगे कर्म च है, कोई माड़े कर्म च है। दुकिरत सुकिरत मंद है संसार सगलाना, दोहों ते रहत भगत है कोई बिरला जाना। वो कोई बिरला जिहड़ा इन्हां चंगियां ते माड़ियां तो उच्चा उठ जाता है। चंगे करदा होया भी ये नहीं कहता कि मैं कर रहा, कर जाता है, टप जाता है। चंगे करदा होया भी वो नहीं कहता कि मैं चंगे करदा। इस करके कोई बिरला है ऐसा। प्रीतम जी कहते कहन कहावन ए कीरत कर ला। कोई कहता आ करो, कोई कहते आ करो चंगा है, कोई कहते आ करो चंगा है। जिहड़े रब तो आकी होए वे है वो कहते ये संसार मिठा अगला किने डिठा, खाओ पियो ऐश करो, लुट मार करो, पैसा जोड़ो, देखी जाऊगा हाँ जिमें होगा। कई ऐसे भी है, कई अपने दसा नौहां की किरत नूं करके खांदे ने, किसी का कण मात्र भी नहीं खांदे, कई छड्डदे कुछ नहीं। ते बाणी कहंदी आ हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुरपीर हामा तां परे जा मुरदार ना खाए। इहो जी लोकां दी हामी गुरु कदी नहीं भरदा जिहड़े किसी दा हक खांदे आ। इस करके सिखो दुनिया बड़ी पई है, बड़ियां गल्लां करदे है। कोई कहंदा ऐ कर लो जी, कोई कहंदे ऐ कर लो। किन्ने तरह के धर्म बन गए दुनिया विच। हरेक ही कहना साडा धर्म चंगा, वो कहते असीं जगराता करांगे, वो कहते असीं इधर जावांगे, वो कहते असीं इधर जावांगे। बाबा जी कहते दुनिया बड़े तरह की है। कहन कहावनी है कीरत कर ला, कथन कहन ते मुक्ता। गुरमुख कोई बिरला ते कोई बिरला जिहड़ा कथन कहन तो उत्ते उस तत्त नूं जान के सारियां विच रब नूं देखदा। को सतनाम श्री। हुण दुनिया लड़ी जाती है ना, आ धर्मां नूं मुख रख के दुनिया लड़ी जाती है। मुसलमान कहते ही साडा धर्म चंगा है, सारे हिंदू मुसलमान बन जाओ। और औरंगजेब ने धक्के नाल बनाने शुरू किए। पर किते भी गुरुआं ने यह नहीं कहा भी तुसीं साडे सिख बनो। जिन्हों समझ आई वो आपे ही गुरु नानक दे मार्ग ते चलना शुरू होया। सतगुरां ने सच दा मार्ग दसिया भी यह रस्ता सही है। ते जे मुगलों ने औरंगजेब वर्गियां ने हिंदुस्तान के लोगों को जुल्म करना शुरू किया, मारना शुरू किया, लुटना शुरू किया, तो इन्हां दोनों को फिर हटाउण वाला जिहड़ा सीगा गुरु खालसा, अहमद शाह अब्दाली चढ़ के आया, उन्होंने रोकण वाला खालसा सीगा। उस तो पहला 17 बारी जंग की उसने
लुटिया हिंदुस्तान नूं किसी ने रोकिया नहीं, बल्कि अपनियां बहू बेटियां उन्होंने डरदे दे देंदे, वो लै जांदे कढ के कुड़ियां साडियां हिंदुआं दियां। तां रोकण वाला कौन सी? गुरु नानक दा सिख। इन्हां दोहां दे विचाले फिर उही अड़दा। इस करके वो कौन है? वो कथन कहण तो परे करन दे विच जिहड़ा सोच रखदा है अपनी। गुरमुख कोई बिरला परमेश्वर दे प्यारे जिहड़े हन सच ते चलण वाले, वो सच दे मार्ग ते चलदे आ, वो गल्लां नहीं करदे। सतगुरु पातशाह जी कहंदे दुनिया तरह तरह दीयां गल्लां करदी है। अज की है? अज कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए, वो कहंदे साडा ही धर्म चंगा है, होर कोई होना ही नहीं चाहिदा, सारे भगवां ही भगवां करदे हो। ये भी गलत गल है। किसी नूं धक्के दे नाल उहदा धर्म बदलना गलत गल है। असल दे विच सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मां तो चंगा धर्म है परमेश्वर नाल जुड़ना ते चंगे काम करने। इस पासे कोई विरला चलदा है, नहीं तो कोई कहंदा जी ऐ करो, कोई कहंदा ऐ करो। कहन कहावन कहन नूं कहो बहुत कुछ कहंदे है, यह कीर्त कर ला, ये कर ला, वो कर ला, पर कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई बिरला। गाते अवगत कछ नजर ना आया। वो परमेश्वर जिहड़ा सदा रहन वाला है, कदे जांदा नहीं, ओदी चाल नूं ओदे हुक्म नूं समझिया नहीं मनुख ने। वो नज़र नहीं आउंदा परमेश्वर दुनिया नूं जिहड़ा हर थां ते हर वेले है। संतन की रेन नानक दान पाया, पर इस नानक ने पंजवें पातशाह सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे संतां दी चरण धूड़ चों इस नानक ने उस नूं प्राप्त कीता। दान विच मिल गया, पैसे नाल नहीं मिलदा, धक्के नाल नहीं मिलदा, परमेश्वर दे प्यारियां दी किरपा नाल मिलदा है। इस करके धन गुरु अर्जन देव जी कहंदे मैं परमेश्वर दे प्यारियां दी संगत करके उथों ये गल जानी कि चंगे माड़े कामां तो उत्ते भी कोई काम है। दुकिरत सुकिरत मंदे संसार सगलाना, दोहों ते रहत भगत है कोई बिरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी, तो बड़ पुरख सुजाना रहाओ। ये दुनिया कोई मान वडियाई च है, कोई हंकार च है। मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संतो कोई कोट मंदाही। ओ सी गुरु। गुरुआं ने तत्त की जानकारी सानू दिती, तत्त नूं जानना कीता, सानू आत्मक तत्त नाल जोड़िया, उहदी जानकारी दिती और संसार दे विच चंगा जीवन जिउण दी जाच सिखाई। इस ही अज दे पवित्र शब्द दे विचार। जिन्हां ने इस गल नूं जाणिया वो परमेश्वर नाल जुड़े, ते परमेश्वर नाल जुड़ के उन्हां ने की कीता? तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। हुण मैनू तेरा भरोसा है, मैं तेरे नाल जुड़ गया हाँ, तेरे चरनां नाल जुड़ गया हाँ। तेरे भरोसे ते ही मैं सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। इस बेड़े को पार लंघावो। जिन्हों समझ आ गई वो आप भी जुड़दा ते अपने परिवार नूं भी जोड़दा है। खैर इस अज दे शब्द के विचार, अगले शब्द के विचार आपां कल दे दीवाना विच सरवण करांगे। बोलदे अनेकां अखर बाद घाट हो जांदे। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।